તો ગૃહમંત્રી અમિત શાહ નડાબેટ ખાતે પહોંચી ગયા છે। ત્યાં બેટિંગ રિટ્રીટ સેરેમનીમાં પણ તેઓ ઉપસ્થિત રહેવાના છે। આપને જણાવી દઈએ કે ગૃહમંત્રી ગુજરાતના પ્રવાસે આવ્યા છે, ત્યારે નડાબેટમાં બેટિંગ રિટ્રીટ સેરેમની અત્યારે ત્યાં ચાલુ થઈ ગઈ છે, જ્યાં અમિત શાહ પહોંચ્યા। તો વાઘા બોર્ડર જેવા દ્રશ્યો અહીંયા ગુજરાતમાં પણ દેખાઈ રહ્યા છે। સીમા દર્શન માટે હવે પોઈન્ટ તૈયાર કરાયો છે। તો સરહદ પર અમિત શાહ પહોંચી ગયા છે, જ્યાં નડેશ્વરી માતાને અમિત શાહે શીશ ઝુકાવ્યું હતું અને દર્શન કર્યા હતા, અને હવે તેઓ બેટિંગ રિટ્રીટ સેરેમનીમાં પહોંચ્યા છે, જ્યાં જવાનો દ્વારા પરેડ કરવામાં આવી રહી છે। મહત્વનું છે કે વાઘા અને અટારી બોર્ડર પર જે રીતે આ સેરેમની યોજાતી હોય છે તે હવે ગુજરાતમાં પણ જોવા મળશે। સરહદ પર આ પ્રકારનો નજારો હવે જોવા મળશે। તો વાઘા બોર્ડર જેવા જ દ્રશ્યો હવે અહીંયા દેખાઈ રહ્યા છે, જેમાં ઉપસ્થિત રહ્યા છે ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, સાથે સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા છે। તો આપને જણાવી દઈએ કે આજે અમિત શાહ ગુજરાતના પ્રવાસે આવ્યા છે અને તેઓ લોકાર્પણ પ્રસંગમાં પણ ઉપસ્થિત રહેવાના છે। સૌથી પહેલા તેમણે દિવસની શરૂઆત નડેશ્વરી માતાના મંદિરે જઈને દર્શન કરીને કરી હતી। ત્યારબાદ તેઓ અત્યારે બેટિંગ રિટ્રીટ સેરેમનીમાં પહોંચી ગયા છે, જ્યાં જવાનો દ્વારા પરેડ કરવામાં આવી રહી છે। તો નડાબેટ પર હવે આ દ્રશ્યો છે તે ખરેખર કંઈક અલગ જ છે, અને સાથે જ શૌર્યના દ્રશ્યો પણ સામે આવી રહ્યા છે। તો મંચ પર આપ જોઈ રહ્યા છો અમિત શાહ ઉપસ્થિત છે, સાથે જ મંત્રીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા છે, અને થોડીક વાર બાદ તેઓ સૈનિકો સાથે સંવાદ કરવાના છે, સાથે તેઓ ભોજન પણ લેવાના છે। તો જવાનો છે તેમનામાં આજે એક અલગ જ ઉત્સાહ દેખાઈ રહ્યો છે, કારણ કે ગૃહમંત્રી અમિત શાહ નડાબેટ ખાતે પહોંચ્યા છે અને તેઓ તેમની સાથે વાત પણ કરવાના છે। સીમા દર્શન માટે હવે અલગ અલગ પોઈન્ટ બનાવવામાં આવ્યા છે, અને નડાબેટ પર હવે ટુરિઝમ જે રીતે વિકસાવવામાં આવી રહ્યું છે, કરોડોનો ખર્ચ કરીને અહીંયા ટુરિઝમ વિકસાવવામાં આવી રહ્યું છે। તો નડાબેટ પરનો નજારો છે તે કંઈક અદ્ભુત છે। એક્ઝિબિશન સેન્ટર બનાવવામાં આવ્યું છે, વિંગ ડ્રોપ ટેન્ક પણ ત્યાં બનાવવામાં આવી છે। આપને જણાવી દઈએ કે 3 એન્ટ્રી પોઈન્ટ છે, સોલર ટ્રી જોવા મળશે, બીએસએફ બેરેક પણ અહીંયા જોવા મળશે। नड़ाबेट नो नजारो छे ते अद्भुत छे। और बुलंद आवाज से और जोश से भरेंगे पद्मश्री कैलाश खेर जी। आमंत्रित करते हैं आप सभी की तालियों के गर्जन के साथ पद्मश्री कैलाश खेर जी को उनकी प्रस्तुति के लिए। તો જે રીતે મંચ પર અમિત શાહ ઉપસ્થિત છે, સાથે જ મંત્રીઓ પણ તેમની સાથે ઉપસ્થિત છે, ખાસ કાર્યક્રમનું પણ અહીંયા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। નડાબેટ ખાતે અમિત શાહ પહોંચ્યા છે અને થોડીક જ ક્ષણોમાં કૈલાશ ખેર પણ ત્યાં પોતાનો અવાજથી લોકોના દિલ રેલાવશે। મહત્વનું છે કે અમિત શાહ જ્યારે આવી રહ્યા છે ત્યારે ખાસ કાર્યક્રમનું અહીંયા આયોજન કરાયું છે। Just give me this thing. आप सभी को आज के पावन महापर्व रामनवमी की शुभकामनाएं हैं। तत्पश्चात आज हम देशभक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति, राम भक्ति में डूबे हुए ये गीत समर्पित करते हैं, राष्ट्रगीत।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। हरिओम। बने रहो साहेब। मंगल। आओ जी, आपको मेरे लिए यहाँ पे आना पड़ेगा। बस खड़े होना सर, तो मैं आ जाता हूँ। धना सबने सुना रे, डंका बोले धुम धुम जागो जागो, अब तुम नींद में हो क्यों गुम हो। जागो रे जागो जागो रे, जागी जागी है धरती सारी और जागा जागा है अंबर, जागी जागी है नदियां सारी और जागा जागा है सागर। जागो मंगल 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 हो, मंगल 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 हो। जागे नगर सारे जागे हैं घर सारे, जागा है अब हर गाँव, जागी है बगिया तो जागे हैं पेड़ और जागी है पेड़ों की छाँव। मंगल 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 हो। और आवे जो गंगा नहाने, रात हर घाट से हट जाए, सूर्य किरणों की तलवार ताने है और अंधियारा सब कट जाए। कोई तट पे ही धूनी रमावे, कोई दर्शन को झटपट जाए। जो भी आवे मन की पावे, पाप सब जन्मों का घुट जाए। लेके करवट उठे फिर बजरिया और धंधा हर एक खुल जाए। लाला मुंशी पुजारी सिपहिया, हल्का भारी हर एक खुल जाए। योगी लेके फिरे एक तारा और बस अपने मन की गाय। खुले सभी के भाग का द्वारा, सभी कुशल मंगल हुई जाए। मंगल 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 हो, मंगल 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 हो, मंगल 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 हो, मंगल 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 हो। हमारे साथ हमारे अमित जी हैं तो मंगलय मंगल होगा, परमात्मा की कृपा है तो मंगलय मंगल होगा। हरिओम। बने रहो। आज के बहुत-बहुत समाचार। धन्यवाद। हाँ। पद्मश्री कैलाश खेर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार। अन्य आवश्यक कारणों के चलते माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमसे विदा ले रहे हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बताया जाता है कि 1971 की जंग में यहाँ नगर पारकर तक पाकिस्तानी जमीन का हिस्सा बीएसएफ के जवान નડાબેટ ખાતે આજે બીએસએફના કાર્યક્રમમાં અમિત શાહે હાજરી આપી છે અને કૈલાશ ખેરે પણ વંદે માતરમનું ગીત ગાયું છે અને દેશભક્તિના ગીત ગાયા છે આજે। તો પાકિસ્તાનની બોર્ડર વંદે માતરમના સૂર ગુંજી ઉઠ્યા છે। તો અમિત શાહ આજે ગુજરાતના પ્રવાસે આવ્યા છે ત્યારે ત્યાં કાર્યક્રમોનું આયોજન કરાયું છે અને મીટિંગ રિટ્રીટ સેરેમની પણ ત્યાં યોજાઈ છે। તો ન્યૂઝ બુલેટિનમાં હાલ સમય થયો છે એક બ્રેક લેવાનો। ભવ્ય કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, તેમની સાથે કેટલાક મંત્રીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા છે। જવાનોની શૌર્ય ગાથા એની જાણકારી પ્રાપ્ત કરે, આવનારા નવું ભારત નવું ગુજરાતના ભાવિ પેઢીને નડાબેટ પ્રવાસન સ્થળના માધ્યમથી આવનારા સમગ્ર ભારત વર્ષના નાગરિકો માટે દેશભક્તિના સંસ્કારોનું સિંચન થાય
એવા અનેક ઉદ્દેશ સાથે આપણે આજે આ નડાબેટનું લોકાર્પણ કર્યું છે। ત્યારે ફરીથી અમારા આદરણીય ગૃહમંત્રી આદરણીય શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબ, અમારા મુખ્યમંત્રી આદરણીય શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને અમારા સ્ટેજ ઉપરના તમામ મહાનુભાવો, પત્રકાર મિત્રો, બીએસએફના જવાનો, સુઈ ગામ અને આસપાસથી પધાર મોટી સંખ્યાના નાગરિકો અને પત્રકાર મિત્રો, આપ સૌનું હૃદયપૂર્વક હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। ભારત માતા કી જય। ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય મંત્રીશ્રી આપનો। તેઓના શબ્દોથી સ્વાગત બાદ આજના આ વિશેષ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત માનનીય કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રીશ્રીનું સ્વાગત કરીશું, जिसमें सबसे पहले मैं निवेदन करती हूँ माननीय मंत्री श्री पूर्णेश मोदी जी, टूरिज्म मिनिस्टर, वे स्वागत करेंगे माननीय गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी का। तालियों के गर्जन से हम स्वागत करेंगे। उपस्थिति है केंद्रीय गृह मंत्री महोदय की आज के इस विशेष अवसर पर। साथ ही में माननीय प्रभारी मंत्री बनासकांठा श्री गजेंद्र परमार जी, वे स्वागत करेंगे। साथ में जुड़ेंगे स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर श्री किरीट सिंह वाघेला। आज इस विशेष प्रयोजन पे हमारे अध्यक्ष महोदय का स्वागत कर रहे हैं मंत्रीगण। निवेदन करती हूं माननीय प्रभारी मंत्री बनासकांठा श्री गजेंद्र परमार जी, वे स्वागत करेंगे हमारे अतिथि विशेष का। आप सभी की तालियों के गर्जन से भी स्वागत हमारे कार्यक्रम के मुख्य अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का। स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर श्री किरीट सिंह वाघेला, वे स्वागत करेंगे। તો બનાસકાંઠા જિલ્લાના નડાબેટ ખાતે 125 કરોડના ખર્ચે તૈયાર કરાયેલા સીમા દર્શન પ્રોજેક્ટનું આજે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહના હસ્તે લોકાર્પણ થયું। કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીની સાથે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ હાજર રહ્યા। વાઘા અટારી બોર્ડરની જેમ લોકો અહીં સીમા દર્શન કરી શકશે અને સાથે જ બોર્ડર સિક્યોરિટી ફોર્સના જવાનોની કામગીરીથી પણ વાકેફ થઈ શકશે। આ સમગ્ર મામલે જાણકારી આપશે સંવાદદાતા નિકુલ। અત્યારે નડાબેટ ખાતેના દ્રશ્યો કંઈક અલગ જ દેખાઈ રહ્યા છે। ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પણ ઉપસ્થિત છે। અત્યારે ત્યાં શું આયોજન અને કેવો માહોલ? ટેકનિકલ ખામીના કારણે નિકુલનો સંપર્ક કરી શક્યા નથી, પરંતુ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ આજે સવારે સીમા દર્શન પ્રોજેક્ટના લોકાર્પણ માટે નડાબેટ પહોંચ્યા હતા અને તેમણે મંદિરમાં દર્શન કર્યા હતા। पर्यटन मंत्री श्रीमान पूर्णेश मोदी भाई, हमारे सांसद श्री पर्वत भाई पटेल, दिनेश भाई अनावाड़िया, गुजरात सरकार के बॉर्डर मैनेजमेंट के सचिव धर्मेंद्र सिंह गंगवार जी, डीजी बीएसएफ, जिनके नेतृत्व में हमारी सबसे कठिन सीमाओं की सुरक्षा बीएसएफ के जवान कर रहे हैं, श्रीमान पंकज सिंह जी, आईजी बीएसएफ ज्ञानेंद्र सिंह मलिक जी, पीवी रामाशास्त्री जी, एडिशनल डीजी बीएसएफ श्री हरीश शुक्ला, आनंद पटेल, मेरे मित्र और बनासकांठा बैंक के अध्यक्ष शंकर भाई, बनासकांठा के ही विधायक श्री शशिकांत भाई पंड्या और आज कार्यक्रम में पधारे हुए प्यारे भाइयों बहनों और बीएसएफ के जवानों, सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को, गुजरात के सभी लोगों को और देश के सभी लोगों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। रामनवमी एक प्रकार से चैत्र नवरात्रि की समाप्ति होती है और एक ऐसे व्यक्तित्व के जन्म का दिन भी है
जिसको हजारों सालों के बाद किसी को निमंत्रण नहीं देना पड़ता, करोड़ों करोड़ों लोग अपने खर्चे से अपने घर में मनाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जीवन में हर एक भूमिका किस प्रकार से निभानी चाहिए, आदर्श बेटे की भूमिका, आदर्श पति की भूमिका, आदर्श राजा की भूमिका, आदर्श सेनापति की भूमिका, सभी भूमिका किस प्रकार से निभानी चाहिए, इसका एक शब्द बोले बगैर अपने जीवन कवन के द्वारा सालों सालों तक, युगों युगों तक लोग प्रेरणा ले, इस प्रकार का जीवन जीकर गए। इसीलिए आज हमारे आराध्य हैं, हम सब उनको भगवान के स्वरूप में उनकी पूजा करते हैं और उनके जीवन के बताए हुए दर्शन पर चलने का प्रयास करते हैं। चैत्र शुक्ल नवमी के माता नडेश्वरी के मेले में भी आज मुझे उपस्थित रहने का मौका मिला। सच अर्थ में इस मेले के बारे में मैं नहीं जानता था। 2 दिन पहले शंकर भाई का फोन आया कि यहाँ मेला भी लगता है। मैंने कहा चलो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो आज मां नडेश्वरी के भी आशीर्वाद लेने का मेरे जीवन में मुझे सौभाग्य मिला है। मित्रों, सबसे पहले भारत की कठिन से कठिन सीमाओं की सुरक्षा करने वाले बीएसएफ के हमारे जवान जो -40 डिग्री टेम्परेचर से लेकर 45 डिग्री टेम्परेचर वाली सीमाओं पर जान की बाजी लगाकर देश की सुरक्षा लेते हैं और कई बीएसएफ के जवानों ने अपनी जान गंवाई है, वो सभी को याद कर पूरे देश की ओर से आज इस शुभ प्रसंग पर उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मैं बीएसएफ के जवानों को कहना चाहता हूं कि सीमाओं के अंदर देश सुरक्षित है, देश विकास कर रहा है, देश पूरे दुनिया के मंच पर सर्वोच्च स्थान की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ये सभी इसलिए हो रहा है कि आप आपके घर से दूर, हजारों किलोमीटर दूर सीमा पर खड़े होकर ये तपते हुए रेगिस्तान में अहरनिश मां भारती की सुरक्षा में लगे हुए हैं। और मैं आज पूरे देश की जनता की ओर से जीवन पर्यंत कर्तव्य के नारे को चरितार्थ करने वाले बीएसएफ के छोटे से छोटे जवान से लेकर बीएसएफ के डीजी, ये सभी हमारे जवानों का संबल बढ़ाने के लिए पूरे देश की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूं और आपकी वीरता को सैल्यूट भी करना चाहता हूं। हर बार जब जब देश पर आफत आई, बीएसएफ ने वीरता दिखाने में कोई कमी नहीं। 1 महावीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र, 13 वीर चक्र, 13 शौर्य चक्र और अनेक बलिदानियों की अमर गाथा बीएसएफ अपने साथ लेकर चलती है। और ये वीरता का जो अनूठा संगम बीएसएफ में हुआ है, उस पर पूरा देश गर्व करता है और पूरा देश आपके ही कारण आश्वस्त होकर बैठा है। मित्रों, आज मैं नड़ाबेट के सीमा दर्शन वाले पर्यटन स्थल पर आया हूं। मैं मोदी जी की कल्पना को 2 हाथ जोड़कर नमन करना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये परिकल्पना रखी और जब तक कोई यहां आकर देख नहीं लग सकता, ये बहुआयामी परिकल्पना का कभी भी बहुआयामी परिकल्पना को वो समझ ही नहीं सकता। यहां पर आते हैं, ये पूरा नड़ाबेट का यहां का प्रदर्शन स्थली और यहां से बॉर्डर तक आप जाएंगे, तब जाकर मालूम पड़ेगा कि हमारे सीमा प्रहरी कितनी कठिन परिस्थिति में हमारी सुरक्षा का काम करते हैं। यहां पर आते हैं तो बच्चों के मन में देशभक्ति का एक जज्बा, हमारे सशस्त्र बलों के साथ जुड़ने का एक जज्बा और हमारे सीमाओं की सुरक्षा के साथ जुड़ने का एक जज्बा भी यहां से ही उत्पन्न होता है। यहां पर आते हैं तो पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और जब पर्यटन को बढ़ावा मिलता है
तो सीमा के गांव खाली होने की जो एक बहुत बड़ी समस्या हुई है, वो गांवों के अंदर ठहराव होगा, वो गांवों के अंदर लोग रहेंगे, यहाँ रोजगारी का निर्माण होगा और देश का विकास जो हो रहा है सीमा के अंतिम गांव तक पहुंचने की भी शुरुआत होगी। मैं आज यहां से बहुत अच्छी तरीके से परिकल्पित कर सकता हूं कि 10 साल के बाद ये नड़ाबेट का ये सेंटर 10 साल के बाद बनासकांठा जिले के कम से कम 5 लाख लोगों के रोजगारी का केंद्र बनेगा। मैंने पर्यटन मंत्री जी को कहा है, इसको सुल्लो के प्रवास के साथ जोड़ना चाहिए, इसकी प्रसिद्धि करनी चाहिए, छोटे बच्चे ज्यादा से ज्यादा यहां आए, इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए और एक दिन का प्रवास कोई न करे, मेरे बनासकांठा के अंदर कम से कम एक रात रोककर बनासकांठा को भी देख कर जाए, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। मित्रों, मोदी जी ने यहां पर पर्यटकों के लिए फर्नीचर और इंटीरियर वर्क के साथ 3 आगमन प्लाजा बनाए हैं, विश्राम स्थल बनाए हैं, 500 लोगों की क्षमता वाला ऑडिटोरियम बनाया है, चेंजिंग रूम बनाया है, 22 दुकानें और रेस्टोरेंट बनाए हैं, डेकोरेटिव लाइटिंग होने वाला है, सोलर ट्री और सोलर रूफटॉप, लगभग यहाँ का 30% बिजली सोलर बिजली है। इस प्रकार का एक आधुनिक से आधुनिक सेंटर बनाने का काम किया है। इसके अतिरिक्त रिटेनिंग वॉल, बीएसएफ बैरक, पेयजल के और टॉयलेट ब्लॉक की सुविधा, 5000 लोगों की जहां आप लोग बैठे हैं, ये परेड ग्राउंड जहां पर हर रोज शाम को परेड भी होगी और बीएसएफ की गाथा भी सुनाई जाएगी। बच्चों को खेलने की सुविधाएं और 100 फुट ऊंचा ये तिरंगा आसमान को जो छू रहा है, ये सभी यहाँ की आकर्षण के केंद्र बनेंगे। बीएसएफ की तीनों विंग, समुद्री, वायु और आर्टिलरी, इसका परिचय यहाँ पर बीएसएफ की गैलरी में होगा। यहाँ पर 6 गैलरियां बनी हैं, वो हमें देश के सभी सीमाओं का परिचय कराएगी, जहां जहां बीएसएफ है। और गुजरात के पर्यटन के लिए भी एक गैलरी, बनासकांठा और नड़ाबेट के पर्यटन के लिए भी एक गैलरी बनाई गई है। मित्रों, बॉर्डर टूरिज्म ये बहुत बड़ा स्वप्न हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा है और यहाँ मीटिंग रिट्रीट समारोह, मुझे भरोसा है कि इसके आकर्षण का केंद्र बनेगा। बॉर्डर टूरिज्म के माध्यम से बॉर्डर की सुरक्षा, बॉर्डर के सीमा प्रहरियों के साथ जनता का संवाद और सीमा प्रहरियों के प्रति जनता के मन में एक आकर्षण का भाव, ये तीनों उद्देश्य इस कार्यक्रम से हल होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मोदी जी ने सरहदों की सुरक्षा के लिए ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। खैर, आज मैं यहाँ पर आप सभी को, विशेष कर बनासकांठा के लोगों को बहुत बहुत हृदय से शुभकामना देता हूँ, क्योंकि अब बनासकांठा न केवल गुजरात के लोग तो पूरे के पूरे देखेंगे, देश भर में नड़ाबेट के कारण बनासकांठा आकर्षण का केंद्र बनेगा और हमारे सरहदी जिले के अंदर पर्यटन की सुविधाएं बढ़ेगी और बीएसएफ की वीरता को नजदीक से जानने का मौका देश भर के लोगों को मिलेगा। मैं अतः बीएसएफ के सभी जवान जो देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, फिर से एक बार उनके प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करना चाहता हूं। बीएसएफ के जवान, बीएसएफ, गुजरात सरकार का पर्यटन विभाग और कलेक्टर की पूरी टीम, बनासकांठा कलेक्टर की पूरी टीम, सबका, और अंत में जिन्होंने इसकी कल्पना करी है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करना चाहता हूं। वंदे मातरम। बहुत 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 धन्यवाद माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह साहब, आपका सहृदय आपका आभार प्रकट करते हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप उपस्थित रहें।
इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम संपन्न करते हैं। आपका बहुत बहुत फिर से एक बार ऋण स्वीकार करते हैं। आपका आभार। તમામ લોકો આવી શકશે અને બીટિંગ ધ રિટ્રીટ સેરેમની પણ નિહાળી શકશે। તો એક બાદ એક ટુરિઝમ સ્પોટ્સ વિકસાવવામાં આવી રહ્યા છે ગુજરાતમાં। જે રીતે કેવડિયા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીનું ટુરિઝમ હબ બનાવવામાં આવ્યું છે। સમગ્ર ભારત નહીં પરંતુ સમગ્ર વિશ્વમાંથી લોકો આવે છે તેને નિહાળવા માટે। તેવી રીતે જ હવે બનાસકાંઠાના નડાબેટ ખાતે પણ સમગ્ર ભારતમાંથી લોકો આવશે બીટિંગ ધ રિટ્રીટ સેરેમની નિહાળવા માટે। અને 125 કરોડના ખર્ચે તૈયાર કરેલા સીમા દર્શન પ્રોજેક્ટનું કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી દ્વારા લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું। તેઓની સાથે જ સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા અને વાઘા અટારી બોર્ડરની માફક હવે લોકો અહીં પણ સીમા દર્શન કરી શકશે। સાથે જ બોર્ડર સિક્યોરિટી ફોર્સના જે જવાનો છે તેઓ કેટલી કઠિન પરિસ્થિતિમાં કામ કરે છે, આપણા દેશની સરહદની સુરક્ષા કરે છે તે પણ આપણે હવે ખૂબ જ નજીકથી જાણી શકશું, જોઈ શકશું। જવાનોની કામગીરીથી પણ ભારત દેશનો અને ગુજરાતી વાકેફ થશે। તેના માટે પણ ખાસ આ જે વ્યવસ્થા છે ટુરિઝમ હબ છે તે ઊભું કરવામાં આવ્યું છે। કેન્દ્રીય મંત્રી અમિત શાહ અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે આજે સવારે જ પહોંચ્યા હતા અને સીમા દર્શન પ્રોજેક્ટના લોકાર્પણ માટે અને 40 ફૂટની ઊંચાઈ પરથી તેઓએ તિરંગો પણ લહેરાવ્યો હતો અને ત્યારબાદ પ્રોજેક્ટને ખુલ્લો મૂક્યો। ત્યારબાદ અમિત શાહ તેમજ સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ નળેશ્વરી માતાજીના મંદિરે પણ પહોંચ્યા હતા। જે ભવ્યાતિ ભવ્ય મંદિર છે ત્યાંના દર્શન પણ કર્યા હતા, માતાજીના આશીર્વાદ પણ લીધા હતા। તો રાષ્ટ્રના તમામ નાગરિકો માં ભૌમની રક્ષા માટે સતત ખડે પગે રહેનારા બીએસએફના જવાનોની કામગીરી તેમજ તેઓની જે જીવનચર્યા છે તેઓને પ્રત્યક્ષ અનુભવવાની તક હવે તેઓને મળશે અને જવાનોની જે રહેણી કરણી છે, જે ફરજો છે, દેશ પ્રત્યેની જે દેશદાઝ છે, દેશપ્રેમને રૂબરૂ હવે તે નિહાળી શકશે।